Election petitions before the Honorable Supreme Court of India. Election petitions before the Honorable Supreme Court of India, they are governed by the Article 71 of the Constitution of India. Article 71 of the Constitution of India gives exclusive discretion, gives exclusive right to the Supreme Court to adjudicate any dispute related to the election of president or vice president. And the decision of the Supreme Court shall be final in this regard. So, Article 71 is here in front of the screen. All the doubts and disputes arising out of or in connection with the election of president or vice president shall be inquired into and decided by the Supreme Court, whose decision shall be final. जो भी doubts या disputes हैं with respect to the election of president of with respect to the election of a president or a vice president, it shall be inquired into एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ही उसकी इंक्वायरी करेगी, सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करेगा और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस मैटर में फाइनल रहेगा. ये है सब क्लॉज 1. सब क्लॉज 2 स्टेट्स दैट if the election of a person as president or vice president is declared void by the supreme court, अगर कोई इलेक्शन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आती है और उस इलेक्शन पिटीशन की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वॉइड करार देता है, मींस गलत करार देता है, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो भी व्यक्ति था, जो भी चुना गया था, उसने कोई भी अगर डिसीजन लिया इन द कैपेसिटी ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, दे वुड नॉट बी इनवैलिडेटेड. मतलब they would continue such kind of decisions, they would have the same force as if they were made by the president or vice president if they were elected in the right manner as per the law prescribed. तो वही है कि if the election of a president as vice president or vice president is declared void, कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा. तो in such cases acts done by him in the exercise and performance of the powers and duties of the office of president or vice president, as the case may be, प्रेसिडेंट इलेक्शन के केस में प्रेसिडेंट रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के केस में वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जब जिस डेट को सुप्रीम कोर्ट ने उनके इलेक्शंस को वॉइड करार दिया था, उस डेट तक और उस डेट से पहले जो भी डिसीजंस लिए गए हैं प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, जिनके इलेक्शन पिटीशन के द्वारा चैलेंज किया गया है, they shall not be invalidated by reason of the declaration, means they shall have the same force as if their election was fair and they were elected in a fair manner as per the law prescribed in the various statutes like election of presidential and vice presidential election act 1954 and the rules governed by them. जो सब रूल 3 है, this is basically it gives the parliament a special power to make a law which will regulate the election of a president or vice president. प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे करवाना है, उसके लिए पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो उसके लिए एक एक्ट बनाए, उसके लिए एक कानून बनाए. तो इसी पावर को इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम था प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952. वो इधर है, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट 1952, which is here. अब इस एक्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक पावर दी टू मेक रूल्स विच आर कॉल्ड प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल्स 1974. एक्ट कब पास हुआ? 1952 में. रूल्स कब बने? 1974 में. और ये उनके अमेंडमेंट्स हुए हैं बेसिकली तब तक. So again we come to this article, subclause 3 of article 71.
Subject to the provisions of this constitution, Parliament may by law regulate any matter pertaining or relating to or connected with the election of a president or vice president. Clause 4. अब जब भी प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट का कोई इलेक्शन होता है तो बेसिकली एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है. प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, which says that the elected members of the Lok Sabha and the elected member of the Rajya Sabha, please note the word elected member, क्योंकि लोक सभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, राज्यसभा में भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं. तो नॉमिनेटेड मेंबर्स दे डोंट हैव द पावर टू कास्ट द वोट फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. So for the election of the president, only the elected members of the Rajya Sabha and the elected members of the Rajya Sabha, they have the power to cast their votes during the election process of the president. In addition to this elected member of Lok Sabha and Rajya Sabha, there is one more class which is a part of the electoral college of the president. That class is elective members of the legislative assemblies. जो राज्यों की जो सरकारें हैं उसमें भी कई जगह एमएलए होते हैं, कई जगह एमएलए और एमएलसी दोनों होते हैं. तो एमएलसी को निकाल दीजिए, तो जितने भी एमएलएज हैं दे आल्सो हैव द पावर टू कास्ट देयर वोट फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. सो द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट which is defined under article 54 consists of elected members of the Lok Sabha and the elected members of the Rajya Sabha. Number 2, elected members of the legislative assemblies. So let's see article 54. Here is the article 54. The president shall be elected by the members of the electoral college, which will consist of elected members of both houses of parliament. दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा. एंड elected members of the legislative assemblies of the state. और जो यूटी है इसके elected members भी they will cast their vote. जैसे कि पौंडीचेरी में है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंदर है, they will also cast their vote for the election of the president. अब वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा. जब मेंबर्स की बात आती है किसी लोकसभा राज्यसभा की, तो मेंबर्स में दो तरह के होते हैं. एक तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और दूसरा नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं. तो इसीलिए प्रेसिडेंट के केस में नॉमिनेटेड मेंबर्स दे डू नॉट हैव द राइट टू कास्ट देयर वोट, बट इन द केस ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, nominated members of the Rajya Sabha and Lok Sabha, they have the powers to cast their vote during the process of election of the vice president. So ये हो गया इलेक्टोरल कॉलेज हो गया. अब जो प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट 1952 है, इसका सेक्शन 21 है. ये सेक्शन 21 में अगर हम जाते हैं तो इट गिव्स द पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स to regulate the proceedings of the election of president and vice president. Yeah, this is here. Power to make rules. The central government may, after consulting the election commission को consult करने के बाद ही, consult तो कर सकते हैं लेकिन चलेगी किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की. By notification in the official gazette. ऑफिशियल गैजेट में जनरली सारी चीज़ें ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन होता है. इवन जब इलेक्शन कब करवाने हैं, कब इसकी फाइनल डेट ऑफ नॉमिनेशन है, कौन सी डेट को इलेक्शन होगा, कब डेट को वापस ले सकते हैं, एवरीथिंग इज पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट. फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट. नंबर 2, in particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any one of the following matters. या तो सभी के लिए या किसी एक के लिए. जैसे द मेंटेनेंस ऑफ अ लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज की जो लिस्ट है
उसमें कौन कौन रहने वाले हैं? रेफर टू इन आर्टिकल 54 फॉर द प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 66 फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज की जो मेंबर्स की जो लिस्ट है, इसके संबंध में भी सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द इलेक्शन कमीशन में मेक रूल्स। आर्टिकल 54, आर्टिकल 66। सी, the powers and duties of a returning officer and performance by any officer appointed to assist the returning officer। रिटर्निंग ऑफिसर का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी इलेक्शन को करवाने में। ही इज द लोकल, he is a officer at the local level who is executing the process of the election and is reporting to the election commission। तो रिटर्निंग ऑफिसर की पावर्स क्या रहेंगी, उसकी ड्यूटीज क्या रहेंगी, और एक ऐसा ऑफिसर जो हु विल असिस्ट द रिटर्निंग ऑफिसर, उसकी पावर ऑफ ड्यूटीज क्या रहेंगी, इसके संबंध में भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर बनाने की शक्ति दी गई है। द फॉर्म एंड मैनर इन विच नॉमिनेशंस में बी मेड, नॉमिनेशंस किस तरह से लिए जाएंगे, स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस कैसे होगी, प्लेस एंड आवर ऑफ पोलिंग कब करना है, कहाँ करना है। तो ये सब चीजों को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स आफ्टर कंसल्टिंग द इलेक्शन कमीशन। और ये जो रूल्स हैं दे वुड बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गजेट। ये एक्ट पास हुआ था 1952 में और रूल्स बने 74 में। तो पहले के जो इलेक्शन प्रोसेसेस थे, प्रोबब्ली इन द एब्सेंस ऑफ द रूल्स, they may have some different criteria, or they may have some different set of standards or procedures in addition to the act। रूल्स ये है, फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टाइटल रूल्स बोलेंगे कब फोर्स में आया, दे शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, इमीडिएटली आ गया। पब्लिक नोटिस ऑफ इंटेंडेड इलेक्शन कब होगा, नॉमिनेशन पेपर्स कैसे फाइल करिएगा, नोटिस ऑफ विड्रॉल ऑफ द कैंडिडेचर कैसे होगा, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ एंड कंटेस्टिंग, जो कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स है कौन कौन इलेक्शन लड़ रहा है उनकी लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी, उसको पब्लिश किया जाएगा। पोल कब होंगे, फिक्सिंग प्लेस एंड टाइम ऑफ पोल कैसे होंगे, फिक्सिंग प्लेस एंड टाइम ऑफ पोल ऑफ फॉर वाइस प्रेसिडेंट, प्रिजाइडिंग एंड पोलिंग ऑफिसर्स कौन कौन से रहने वाले, इसमें आर ओ जिसको रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं, उसको असिस्ट करने के लिए दूसरा ऑफिसर रहता है, उसके संबंध में जो रूल रहेंगे। डिजाइन एंड फॉर्म ऑफ द बैलेट पेपर्स कैसे रहने वाले हैं, आजकल तो बेसिकली वोटिंग इज डन बाय द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम। बैलेट बॉक्सेस प्रोसीजर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द पोल क्या क्या रहने वाले हैं, एडमिशन टू द प्लेस ऑफ पोलिंग कैसे उस लोग वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं जब प्लेस ऑफ पोलिंग है। Procedure for giving ballot paper, supply of fresh ballot paper in certain circumstances, and elector who has inadvertently dealt with his ballot paper in such a manner that it cannot be conveniently used as a ballot paper, उसने खराब कर दिया तो इस केस में उसको फ्लैश बैलेट पेपर कैसे दिया जाएगा, उस केसेस के लिए भी रूल्स बनाए गए हैं। वो क्या है, an electoral who has inadvertently dealt with his ballot paper in such a manner that it cannot be conveniently used as a ballot paper may, on delivering it to the presiding officer and on satisfying him of the inadvertence, obtained another ballot paper in place of the ballot paper so delivered, and the latter shall, together with its counterfoil, be marked as cancelled by the presiding officer। जो खराब हो चुका था बैलेट पेपर उसको मार्क्ड एज कैंसल्ड हो जाएगा वो। एनी बैलेट पेपर शो कैंसल्ड शैल बी kept in separate envelope set apart for the purpose। Return of unused ballot papers by the electorals। If an elector, if an elector after obtaining a ballot paper for the purpose of recording his vote decides not to use the same, he shall return the ballot paper to the presiding officer, who shall mark it returned and cancelled, and keep it in a separate envelope set apart for this purpose। रिटर्न एंड कैंसिल का अलग से एक एनवेलप रहेगा और जो कैंसल्ड का अलग से एक एनवेलप रहने वाला है। मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग वोट्स, every electoral shall have any preference as there are candidates, but no ballot paper shall be considered invalid solely on the ground that all such preferences are not marked। An electoral in giving his vote
shall place on his ballot paper the figure 1 in the space opposite the name of the candidate whom he chooses for his first preference, and may in addition mark as subsequent preference as he wishes by placing on his ballot paper the figure 2, 3 and 4, and so on, in the spaces opposite the names of other candidates in order of preference. Explanation: the figures referred to in clause A and B of this sub-rule may be marked in the international form of Indian numerals or in Roman form or in the form used in any Indian language but shall not be indicated in words में नहीं होगा. वन की जगह हम वन नहीं लिखेंगे, वन टू नो, ओनली वन, या फिर वन रोमन में लिख सकते हैं, फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं. क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास 10 कैंडिडेट खड़े हुए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए. कैंडिडेट वन, कैंडिडेट टू, कैंडिडेट थ्री, कैंडिडेट फोर, कैंडिडेट फाइव, कैंडिडेट सिक्स, मतलब सिक्स है. तो इस केस में अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ये है तो मैं इसके आगे वन लिखूंगा. अगर मैं बोलूँगा मेरा सेकंड प्रेफरेंस ये वाला है तो इसके आगे मैं दो लिखूंगा. इस तरीके से ऑर्डर प्रेफरेंस मेंटेन करी जाएगी. मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी ऑफ वोटिंग बाय इलेक्टोरल्स विद इन प्लेस ऑफ पोलिंग. Every electoral to whom a ballot paper has been delivered under Rule 14 shall maintain secrecy of voting. भैया secrecy है, कोई गाएगा नहीं कि मैंने इसको वोट दिया उसको वोट दिया. और ये जनरली डेमोक्रेसी में ऐसे ही होता है. जनरली वी डू नॉट टेल टू whom we have voted. It's a secret voting. Recording of votes of illiterate or disabled electoral. अब हिंदुस्तान की यही विडंबना है because people they become the member of Lok Sabha and the Rajya Sabha on the basis of the elections which are held by the Election Commission of India, and the voters are the public, voters are the people of India. Anyone who is above the age of 18 years, he is eligible to vote, but he should be enrolled in the voter list. So there is no minimum education criteria existing in place. So our electoral, in case of president or vice president, he may be illiterate also, or disabled. Disabled basically it is not in the hand of anyone. इन दैट केस इफ एन इलेक्टोरल इज अनेबल टू रीड द बैलेट पेपर, उसको पढ़ना ही नहीं आ रहा है, और टू रिकॉर्ड इज वोट, उसको रिकॉर्ड करना ही नहीं आ रहा है, देयर ऑन इन द अकॉर्डिंग विद द रूल 17 बाय रीजन ऑफ इलिटरेसी और ब्लाइंडनेस. ब्लाइंडनेस इज बेसिकली डिसेबल्ड by not being conversant with the language in which the ballot papers are printed on, by reasons of any physical or other disability, the presiding officer shall record the vote on the ballot paper in the accordance with the wishes of the elector. इस केस में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब हैं वो वोट को डालेंगे उस बंदे से पूछ के कि भाई किधर डालना है. रिकॉर्डिंग ऑफ वोट्स ऑफ इलिटरेट और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास इस तरह की पावर देगी. राइट. The electoral shall then himself or with the assistance of the presiding officer fold up the ballot paper so as to conceal his vote and insert into the ballot box. While acting under this rule, the presiding officer shall observe as much of secrecy as is feasible and shall keep a brief record of each such instance but shall not indicate therein the manner in which any vote has been cast. तो ये अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ही हैज टू कीप अ रिकॉर्ड, बट इट कैन नॉट कीप अ रिकॉर्ड कि वोट किसको दिया गया, किसने वोट डाला, who was the presiding officer. इस तरह की इंफॉर्मेशन it would be recorded. अकाउंट ऑफ बैलेट पेपर्स, कितने बैलेट पेपर है, सीलिंग ऑफ द बैलेट बॉक्सेज एंड पेपर आफ्टर द क्लोज ऑफ पोल, ट्रांसफर ऑफ बैलेट पेपर्स फ्रॉम बैलेट बॉक्स इन द सर्टेन केसेस, dispatch and custody of the ballot boxes and papers, adjournment of polls in emergencies, fresh poll in case of destruction of ballot boxes, voting by electors under preventive detention. अगर बैलेट बॉक्सेस का डिस्ट्रक्शन हो गया, डैमेज होगा, उस केस में क्या होगा, फ्रेश पोल्स की संभावना भी है. इफ एट एनी इलेक्शन ballot boxes unlawfully taken away from the custody of the presiding officer or returning officer or is in any way tampered with, destroyed or खो गया, the poll taken at the place of polling where the ballot box was used shall be deemed to have been vitiated.
And the returning officer shall as soon as possible report the matter to the election commission, which shall appoint a day for taking a fresh poll at that place and fix the hours. अब क्या होगा, अगर इस तरह की कंडीशन होती है जहाँ पे बैलेट बॉक्स किसी तरीके से डैमेज हो गया है या खो गया, तो भाई फिर उसको फ्रेश इलेक्शन कराया जाएगा. एक जस्ट होल्ड ऑन, क्या हो गया इसको, व्हाई आई एम नॉट एबल टू डू इट. हाँ. अब इन सच केसेस एज अफोरसेड प्रोविजंस ऑफ द रूल शैल अप्लाई टू द फ्रेश पोल्स एज अप्लाई टू द ओरिजिनल पोल्स. जो ओरिजिनल पोल्स जिस तरह से ओरिजिनल पोल किए जाते हैं वही रूल जो है फ्रेश पोल के लिए भी करे जाएंगे. वोटिंग बाय इलेक्टोरल्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन. प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होगा कि कोई व्यक्ति को अगर वोटिंग प्लेस पे लेके नहीं आ सकते, ही इज अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन. उस केस में रूल्स क्या है, notwithstanding anything in the foregoing provisions of this chapter, an electoral may, if he is subjected to preventive detention under any law for the time being in force, give his vote by postal ballot. The election commission shall send a registered post to the officer in charge of the jail or other place where electoral is detained, and appropriate ballot paper together with a form of declaration of identity and attestation of signature and necessary envelopes especially prepared for the purpose and a letter of instructions so as to reach that officer in good time before the date fixed for polling. पोस्टल बैलेट आज भी होते हैं ईवीएम के टाइम पे, बिकॉज आजकल तो सभी ईवीएम यूज करी जा रही है. सो बट द पीपल हु कैन नॉट कम टू द वोटिंग प्लेस, फॉर एग्जांपल हु आर deputed at borders, they cannot come to the place of voting. In that case they cast their vote by the method of postal ballot. In postal ballot जो इलेक्शन कमीशन है, he shall send by registered post to the officer in charge of the jail. यहाँ पे जेल नहीं होगा, यहाँ पे जो भी उसका ऑफिसर इंचार्ज होगा उसके पास एक रजिस्टर पोस्ट जाएगी, उसमें एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को भरा जाएगा, लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगी कि वोट कैसे करना है और वो वापस कैसे आएगा, वो सब चीज़ें होगी. और वो एनवेलप होगा, एनवेलप में डालेगा, फिर वो वापस पोस्ट कर देगा. इट विल कम टू द इलेक्शन कमीशन. ऑन द डेट ऑफ पोलिंग द साइड ऑफिसर शैल डिलीवर द बैलेट पेपर and other necessary papers to the electoral, allowing him all reasonable facilities and sufficient time not exceeding 2 hours for recording his vote in accordance with the instructions of the election commission. And if and when the electoral has so recorded his vote, send the ballot paper and other connected papers in a sealed cover. वापस भेज देगा either by registered post or through a special messenger to the returning officer as to reach him before the time fixed for the counting of votes under rule 727. चैप्टर 5 में काउंटिंग ऑफ वोट्स कैसे करना है, ये सब चीजें हैं. अब ये जो इलेक्शन पिटिशंस है, दे आर बेसिकली गवर्न्ड बाय द रूल 46 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रूल 2013. सुप्रीम कोर्ट रूल्स 46 में इट इज हियर. whenever somebody wants to challenge the election of a president or vice president, he has to put up an application in the form of a petition. Under part 3 of the presidential and vice presidential election act 1952, पार्ट 3 में एक पिटीशन जाएगी. उस पिटीशन की जो कोर्ट फीस है, इट वुड बी ₹20,000. 20,000 रुपये का 20,000 इज द कोर्ट फीस. इट शैल बी वेरीफाइड बाय एफिडेविट. इन केस अगर वेरीफाइड बाय एफिडेविट नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है, विद द सैंक्शन ऑफ द जज इन चैम्बर, जब पिटीशन को प्रेजेंट किया जा रहा है, एट दैट टाइम आल्सो एफिडेविट कैन बी सबमिटेड. पिटीशन कौन डाल सकता है, who will be the petitioner?
Of course, the person who is calling in question an election, who is basically challenging the election procedure, he is the petitioner. बट वो petitioner, everybody cannot be the petitioner. यहाँ पर लोकल स्टैंडिंग का कौन है बंदा? या तो कोई एक कैंडिडेट हो जो कि जिसने उस इलेक्शन में हिस्सा लिया हो, या जो इलेक्टोरल्स हैं वो भी पिटिशन लगा सकते हैं. बट इलेक्टोरल्स में क्या है कि एक मिनिमम नंबर इलेक्टोरल्स होने चाहिए टू फाइल द पिटिशन अंडर पार्ट 3 ऑफ द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952. प्रेसिडेंट के केस के अंदर 20 या 20 से अधिक इलेक्टोरल्स मिलके एक पिटिशन डाल सकते हैं. प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 20 या 20 से ज़्यादा, तो याद करने वाली बात है कि इसमें वोट 20 या 20 से अधिक इलेक्टोरल्स मिलके भी किसी इलेक्शन को चैलेंज कर सकते हैं, वेदर इट इज ए प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल, कोई फर्क नहीं पड़ता. जब भी कोई पिटिशन लगाई जाएगी तो उसमें एक सीनियर एडवोकेट का सर्टिफिकेट लगाया जाता है. सीनियर एडवोकेट ही सर्टिफाइज that the petition discloses one or more substantial question for challenging the election of the president or vice president as the case may be. अब grounds for challenge they are mentioned under section 18 and 19. जो लिमिटेशन पीरियड 30 डेज का है, जिस दिन इलेक्शन मेरा अनाउंस हुआ, आफ्टर दैट विद इन 30 डेज इलेक्शन पिटिशन शुड बी फाइल्ड. So the petition may be presented at any time after the date of publication of the declaration containing the name of the returned candidate. Returned candidate होता है winning candidate, who is the winner. Who is the winner? विनर को रिटर्न कैंडिडेट बोलते हैं. अंडर सेक्शन 12 में उसका अनाउंसमेंट होता है दैट ही इज द रिटर्न कैंडिडेट. और कौन करता है? रिटर्निंग ऑफिसर करता है. नंबर ऑफ कॉपीज शुड बी एटलीस्ट 12 कॉपीज. और इस पे जो रेस्पोंडेंट बनता है ये बहुत, और इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी पिटिशनर है या जितने भी पिटिशनर्स हैं, दे हैव टू डिपॉजिट अ सम ऑफ ₹50,000 एज द सिक्योरिटी डिपॉजिट. अगर मान लीजिए कल को सुप्रीम कोर्ट ने कोई कॉस्ट लगाया, सो दैट दैट कॉस्ट इट कैन बी रिकवर्ड. तो एक चीज तो कंफर्म है कि कॉस्ट विल नॉट बी मोर देन 50,000. So this is under section 13. Upon the presentation of the petition, the petitioner shall deposit a sum of ₹50,000 in cash or by bank draft with the registrar or officer nominated as security for the payment of all costs that may become payable by the petitioner. सिक्योरिटी है तो जरूरी नहीं है कि उसका पैसा बर्बाद हो गया या खत्म हो जाएगा. सिक्योरिटी मीन्स समथिंग विच इज सब्जेक्टेड टू रिटर्न upon certain conditions. The petitioner presenting a petition shall be presented by an advocate, and in case it is so necessary, the court may direct that legal aid be provided to the petitioner. In case if petitioner they are not able to engage any advocate, then legal aid may also be provided by the Supreme Court. जो बेंच होगी, it तो that bench should consist of 5 judges for preliminary hearing. फाइनल हियरिंग में मिनिमम 5 जजेस होना चाहिए. सो मिनिमम 5 जजेस का बेंच इसको सुनती है. तो एक है जो इंपॉर्टेंट चीज है, ₹50,000 का कॉस्ट, ₹20,000 की कोर्ट फीस, एटलीस्ट 12 कॉपीज ऑफ द पिटीशन, सीनियर एडवोकेट का सर्टिफिकेट, हु विल बी द पिटिशनर, एनी कैंडिडेट और 20 और मोर इलेक्टोरल्स, इन बोथ केसेस प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट. पिटीशन के कंटेंट्स क्या क्या होने वाले हैं, एवरी वन ऑफ अस नोज. वही जनरल कंटेंट्स हैं कि किस ग्राउंड पे पिटीशन को चैलेंज किया जा रहा है और उसका लोकल स्टैंडिंग कैसे है. अब जब भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आती है, व्हेनेवर द पिटीशन इज फाइल्ड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द नोटिस ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन, जो नोटिस है कई लोगों को जाता है इमीडिएटली विद इन 5 days आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन.
अगर आज मैंने पिटीशन डाली है, आज मेरी पिटीशन प्रेजेंट हुई है बिफोर द कोर्ट, तो अगले 5 दिन के अंदर मुझे जो अपोजिट पार्टी है उनको पिटीशन की कॉपी सर्व करनी है. As such manner be served by the petitioner or his advocate on record. किस किस पे, अगर एक रेस्पोंडेंट है तो एक रेस्पोंडेंट पे, एक से ज्यादा रेस्पोंडेंट्स हैं तो एक से ज्यादा रेस्पोंडेंट्स पे, सेक्रेटरी टू द इलेक्शन कमीशन, द रिटर्निंग ऑफिसर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. सबको एक, अगर रेस्पोंडेंट ज्यादा हो गए 10 हैं तो 10 कॉपी देनी पड़ेगी, इसलिए मिनिमम 12 कॉपी तो चाहिए. तो एक कॉपी तो सेक्रेटरी टू द इलेक्शन कमीशन हो गया, एक कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर की होगी, एक कॉपी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का होगी, एक कॉपी कोर्ट की हो गई. जो इलेक्टोरल है, दो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द पिटिशन, वो वो पिटिशनर का, दे आर नॉट द पिटिशनर, बट स्टिल दे कैन गेट द कॉपी ऑफ द पिटिशन ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन फीस विदिन, एंड वंस द फीस इज पेड विदिन 24 आवर्स उनको उसकी कॉपी मिल जाएगी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एवरी पिटिशन कॉल्ड इन क्वेश्चन एंड इलेक्शन शैल बी पोस्टेड बिफोर and be heard and disposed of by the bench of court not less than 5 judges. अब विड्रॉ वाली बात आती है. मान लीजिए मैंने पिटीशन डाल दिया, गलती हो गया, 50,000 रुपये रिस्क पर है क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया है, 20,000 रुपये की कॉस्ट कोर्ट फीस है. अगर मैं विड्रॉ करूंगा तो मुझे 20,000 रुपये की कोर्ट फी भी रिफंड हो जाएगी, 50 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी हो जाएगा, वापस मिल जाएगा. तो 70,000 रुपीज तो रिस्क पर है ही है. तो इस केस में क्या होता है, अगर पिटिशनर ही वांट्स टू विड्रॉ द पिटिशन, he cannot withdraw this without the permission of the court. अगर एक या एक से ज्यादा पिटिशनर है तो सभी पिटिशनर को अपनी कंसर्न देनी पड़ेगी टू विड्रॉ द पिटिशन. क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए अगर मोर देन वन पिटिशनर है, एक ने विड्रॉ किया, ठीक है, ही वुड बी रिमूव फ्रॉम द एरिया ऑफ पार्टीज, बाकी पिटिशनर तो रहेंगे. So this is about the election petitions. So the important thing is Article 71. Article 71 gives the exclusive right to the Supreme Court to adjudicate the matter with respect to the election of the president or vice president. Number 1. जो आर्टिकल 71 का सब क्लॉज 3 है, इट गिव्स द पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ टू रेगुलेट द इलेक्शन प्रोसीडिंग्स. और इसी पावर का यूज करके पार्लियामेंट ने 1952 में प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 बनाया था. अब इसका जो सेक्शन 21 है किसका, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल, सेक्शन 21 ऑफ द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट 1952, it gave the power to the central government with the consultation of the election commission. Rules may be framed to regulate the proceedings. कि अगर बैलेट बॉक्स अगर खराब हो गया, डैमेज हो गया, खो गया, उस केस में फ्रेश इलेक्शंस कैसे कराए जाएंगे, बैलेट पेपर से इलेक्शन कैसे कराए जाएंगे, बैलेट पेपर इफ समबडी डजंट वांट टू यूज इट उसको रिटर्न कैसे किया जाएगा. दो तरह के होते हैं. मान लीजिए कोई वोटर है, वोटर से उसका बैलेट पेपर खराब हो गया, तो उस केस में क्या होगा, उसको एक नया बैलेट पेपर दिया जाएगा, उससे पुराना बैलेट पेपर ले लिया जाएगा, उसको कैंसल्ड का स्टैम्प मारी जाएगी, उसको एक सेपरेट एनवेलप में रख दिया जाएगा. समटाइम्स इलेक्टोरल्स दे डोंट प्रेफर टू वोट, इन दैट केस वो सभी बैलेट पेपर्स वापस ले लिए जाएंगे बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, और उनको कैंसल्ड एंड रिटर्न करके दूसरे एनवेलप में रखा जाएगा. इस तरह की जो कुछ सिचुएशंस बेस्ड होती है, तो उस केस में क्या क्या रूल्स हैं उसमें बनाया गया है. समटाइम्स कोई बैलेट बॉक्स खो गया, उस केस में फ्रेश इलेक्शंस कैसे कराए जाने हैं. पीपल हु कैन नॉट कम टू द प्लेस ऑफ द वोटिंग, हाउ दे विल कास्ट देयर वोट. इलेक्टोरल कॉलेज का लिस्ट कैसे प्रिपेयर और मेंटेन करी जानी है. तो ये सभी रूल्स बेसिकली दे आर गवर्न बाय द रूल्स ऑफ प्रेसिडेंशियल वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन
रूल्स 1974। अब कोई भी व्यक्ति किस प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को चैलेंज करना चाहता है, बट कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसमें या तो कोई कैंडिडेट होना चाहिए जिसने इलेक्शन लड़ा हो, या फिर ही शुड बी ए मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, देन ओनली। बट इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स हैं, दे शुड बी एटलीस्ट 20। ऐसा नहीं कोई 18 लोग बोलते हैं कि भैया हमको इस इलेक्शन को चैलेंज करना है, सो दे कैन नॉट डू इट, बिकॉज द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टोरल्स दैट शुड, द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टोरल्स who can challenge the process of the election of the president or vice president, they should be 20, both in case of president as well as in case of the vice president. पिटिशन में 20,000 रुपये का कोर्ट फीस है, 50,000 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट है। पिटिशन कैन नॉट बी विड्रॉन एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अगर मोर देन वन पिटिशनर है, देन ऑल द पिटिशनर दे शुड गिव देयर कंसेंट इन राइटिंग दैट दे वांट टू विड्रॉ द पिटिशन। अब जब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द ग्राउंड्स ऑन विच द पिटिशन कैन बी चैलेंज्ड, grounds are available in section, grounds are available in section 19, 18 and 19, and 18 and 19 is here. Just hold on. Okay, these are the rules. Okay, 21 20, this is here. Grounds for declaring the election of a written candidate. Written candidates means who has won the election. अब इस कैंडिडेट को इलेक्शन को चैलेंज करने के लिए रूल्स क्या है? इफ द सुप्रीम कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है दैट किसी कोई भी कैंडिडेट है उसने ब्राइवरी का यूज किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज किया, इन दैट केस उसके इलेक्शंस को अवॉइड किया जा सकता है। इट कैन बी चैलेंज दैट द offense of bravery and undue influence. बी में देर आर टू कंडीशंस। कोई ऐसा वोट जिस विच शुड हैव बीन रिफ्यूज्ड बट इट हैज बीन एक्सेप्टेड, कोई ऐसा वोट विच शुड हैव बीन एक्सेप्टेड बट इट हैज बीन रिफ्यूज्ड। अगर कोई ऐसा मैटर अगर आता है, इस केस में भी जो रिटर्न कैंडिडेट है उसके इलेक्शन को चैलेंज किया जा सकता है। सो दिस इज दैट द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन हैज बीन मैटेरियली अफेक्टेड। पहला तो यह है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड द ब्राइवरी by the candidate or by the persons, by any person with the consent of the written candidate. B, that the result of the election has been materially affected by the improper reception or refusal of a vote under this act. और कुछ नॉन कंप्लायंसेस हैं, by any non compliance with the provisions of this act, non compliance to the provisions of the Constitution of India, or non compliance to the provisions of the Presidential and Vice Presidential Act 1952, या कोई किसी दूसरे कानून के समक्ष कुछ कंप्लाइंस इशू आया है, कोई रूल्स के समझ कुछ कंप्लाइंस इशू आया है, तो उस केस में भी इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो पहला चीज, ऑफेंस ऑफ ब्राइवरी और अनड्यू इन्फ्लुएंस बाय द रिटर्न कैंडिडेट और बाय एनी पर्सन विद द कंसेंट विद द रिटर्न कैंडिडेट, नंबर 1। नंबर 2, acceptance or refusal of a vote, improper reception or refusal of a vote, non-compliance with the constitutional provisions, non-compliance with any of the section of Presidential Vice Presidential Act 1952 or any other law for the time being in force. And the third is refusal, एक्सेप्टेंस, ये हो गया। और बेसिकली आपको ये चीज़ ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट। तो कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे मैंने अगर मुझे बात याद रखना है, ऑफेंस ऑफ ब्रेवरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस, improper reception or refusal, non-compliance. Then, by reason of the fact that nomination of any candidate other than the successful candidate who has not withdrawn his candidature has been wrongly accepted. By the reason of the fact that the nomination of any candidate, किसी व्यक्ति का जो किसी कैंडिडेट का नॉमिनेशन जिसने विड्रॉ नहीं किया,
हैज बीन रॉन्गली एक्सेप्टेड। जिस व्यक्ति ने अपना कैंडिडेचर विड्रॉ तो नहीं किया, लेकिन उसका जो कैंडिडेचर है इट हैज बीन एक्सेप्टेड, बट इट हैज बीन एक्सेप्टेड इन अ रॉन्ग मैनर। See, the nomination of any candidate has been wrongly rejected, or the nomination of successful candidate has been wrongly accepted. Nomination of any candidate has been wrongly rejected, or the nomination of the successful candidate has been wrongly accepted. तो एक दूसरा है 19 number. Grounds for which a candidate other than the written candidate may be declared to be have been elected. Grounds for which a candidate other than the written candidate may be declared to have been elected if any person who has lost an election petition, ठीक है, in addition to calling question the election of the written candidate. इसमें दो क्वेश्चन है। पहला चीज कि जो पिटिशनर है, या तो वो ये बोले कि भाई कि जो रिटर्न कैंडिडेट है ये गलत तरीके से चुना गया है, एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो रिटर्न कैंडिडेट है ये गलत तरीके से चुना गया है, इसके अलावा जो रिटर्न कैंडिडेट होना चाहिए था वो वो मैं होना चाहिए था, दैट शुड बी द पिटिशनर। अगर ये दूसरी वाली कंडीशन है तो उस केस में जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबको रेस्पोंडेंट बनाया जाएगा। If an election who has lost an election, if any person who has lost an election petition has, in addition to calling in question the election of the written candidate, claimed a declaration that he himself or any other candidate has been duly elected by the Supreme Court, is of the opinion that in fact the petitioner or such other candidate received a majority of valid votes, the Supreme Court shall, after declaring the election of the written candidate to be void, declare the petitioner or such other candidates as the case may be to have been duly elected. Section 18, Section 19, very important clauses.